Welcome to all of you on V Plus U Academy. My name is Ashish Garg. In the last class, we have seen the transformation of stress and strain topic and its top PYQs. With the same strategy, today we are going to cover our next topic, that is combined stresses, which is also very important for the ESC exam and the GATE exam. If we see ESC exam, in ESC around 1 to 2 questions asked from this topic, but this topic is very narrow from prelims point of view, but in the mains if you see, this topic is very important. From combined stresses, on an average around 20 to 30 marks question asked in the mains examination, while in prelims examination we have only 2 to 4 marks. In prelims, ESC prelims, we have only 2 to 4 marks, this from 2 to 4 marks from this topic, from combined stresses. Now what do you mean by combined stresses? combined stresses से मतलब क्या होता है? यदि आप बात करो combined stresses, मतलब क्या होता है इसका? stresses which are combined, मतलब combined stresses में combine का मतलब nomenclature यदि आप देखोगे तो हमारे पास stresses 2 types के होते हैं. We know that we have normal stresses and shear stresses, normal stresses and shear stresses. And further, if we classify normal stress, it can be classified into bending stress, bearing stress and normal stress. normal stress का सेंस में टेंसाइल स्ट्रेस या फिर compressive stress. So we have measured these 3 type of stresses under normal stress, and in shear stress we have torsional stress and direct shear stress and torsional shear stress. So if we have a combination of these two, or say these two, or these two, or these two, any combination that is possible by any loading on the structure gives us the combined stresses. So if we have torsional stress and the bearing stress, or say torsional stress or bending stress, that is known as to be combined stress, because these are acting together. Now question asked from this area is mainly, if you see, there are 2 type of questions which are very common in this particular topic. From this topic there are 2 questions which are very common. If you see, consider there is fixed spot and this is a shaft. If this is our shaft having diameter d, if this is a shaft our having diameter d and length L, now in this shaft you have given another rod, you have given another rod of small diameter. If this is capital D, then this is small d of small diameter d. Now if a load is acting at here, like say at here, if this is P1 load that is acting in this direction, the arrangement is like this. You have a fixed spot. Now you have this shaft, आपके पास ये shaft है और उसके आपके पास कोई सेक्शन ऐसे है और उसके ऊपर लोड लग रहा है परपेंडिकुलरली, उसके ऊपर लोड यहाँ लग रहा है आपको परपेंडिकुलरली जो लोड लग रहा है, तो उसके कारण जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होंगे इस शाफ्ट के अंदर, तो कैसे स्ट्रेस प्रोड्यूस होंगे और उस स्ट्रेस से आपको क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं. जैसे यदि मैं इसको शो करूं, यदि ये हमारी रोड है, यदि इसका FBD बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम, तो आपको पता है if this is P1 force, then here we will also have P1 force and bending moment of P1 times of whatever is this length, say L2. If this is our length L1, if this is L1, then this is L2, then this moment will be P1 times L1, and this moment will be going to act at the center of this shaft. This moment act at the center of the shaft,
here this moment, if I show you here, if this is our x-axis, x, and this is our y, this is our y. Now we are seeing movement is like in this direction, that is in y direction. So here we have movement, because this will give us in a anti-clockwise rotation. If this is my having magnitude of P1 L1, तो आपको मैग्नीट्यूड पता है यहाँ पर my का. यदि अब आपको कोई बोले दिस इज अ ब्लॉक, स्ट्रेस ब्लॉक, नाउ समवन आस्क्स यू द वैल्यू ऑफ stress here, normal stress, you can very easily calculate by the formula sigma n equals to m by I into y. So आप easily calculate कर सकते हो यहाँ से, या फिर m by z से आप अपना नॉर्मल स्ट्रेस इस ब्लॉक के ऊपर, लेट्स से ए ब्लॉक, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. और हमें यहाँ पर एक कंप्रेसिव फोर्स भी मिलेगा P1 मैग्नीट्यूड का. और यदि स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस निकालोगे आप, तो वो आ जाएगा आपका P1 डिवाइड बाय पाई बाय 4 d स्क्वेयर, दैट इज P1 बाई एरिया. तो वहाँ से आप डायरेक्ट स्ट्रेस भी आपको मिल जाएगा और साथ में ही बेंडिंग स्ट्रेस मिल जाएगा. विद द हेल्प ऑफ दीज टू स्ट्रेस आप अपना रिजल्टेंट स्ट्रेस निकाल पाओगे, दैट इज मेनली प्रिंसिपल स्ट्रेस. आप प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से. तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एक तो आपका शाफ्ट से पूछा जाता है और एक रेलवे पोस्ट से. ये तो आपका क्वेश्चन था शाफ्ट से, और एक सेकंड क्वेश्चन होता है हमारे पास रेलवे पोस्ट से. रेलवे पोस्ट में जैसे हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन वहीं से देखते हैं, रेलवे पोस्ट से ही आज का फर्स्ट क्वेश्चन वहीं से देखते हैं. रेलवे पोस्ट का क्वेश्चन देखते हैं. हमें गिवन है रेलवे पोस्ट से क्वेश्चन, हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन. रेलवे पोस्ट से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हमें गिवन है एक रोड. आपको एक रोड गिवन है जो वर्टिकली खड़ी है, और आपने पोस्ट देखा होगा जिसके ऊपर आपको इंस्ट्रक्शन दी रहती है, जैसे कि सिग्नल्स की बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं. सीमाफोर सिग्नल है, या फिर वार्नर सिग्नल है, या फिर दूसरे सिग्नल्स हैं, डिस्क सिग्नल है, कौन सा सिग्नल है. तो आपको एक रोड दे रखी है इधर यहाँ पे, और इस रोड के ऊपर आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करेंगे इस तरफ पोस्ट के ऊपर. और आपको गिवन क्या है, आपको लोडिंग गिवन है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 300 न्यूटन. 300 न्यूटन आपको लोडिंग गिवन है. तो आपको बताना है दिस पॉइंट इफ दिस इज पॉइंट ए, यू हैव टू टेल द what is the value of movement at O. If this length is equals to, this length is given to us as 3.5 meter, and this length is given to us as 1.5 meter. 1.5 meter. You have to tell find movement at point O. Movement at point O. आपको मूवमेंट बताना है O पॉइंट के ऊपर. तो आप इसका अगेन फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा. आप पहले पोस्ट के जो इंस्ट्रक्शंस वाला जो स्टैंड है आप उसको अलग से निकाल लीजिए. इफ़ दिस इज 300 cos 30 दिस विल बी, एंड दिस विल बी 300 sin 30. 300 sin 30. नाउ इफ यू सी हेयर दिस इज ऑल्सो 300 cos 30 and this is also 300 sin 30. 300 sin 30, but here we also have an movement due to this load, which is equals to, if this length is 1.5 meter, this length is 1.5 meter, then this movement will be equals to 1.5 times of 300 times of sin 30 डिग्री लीवर आर्म इनटू फोर्स. तो ये आपका मूवमेंट है जो आपको मिल जाएगा जब आप इसको वर्टिकल रोड के ऊपर दिखाओगे. इफ दिस इज अवर वर्टिकल रोड, तो आपको पता है मूवमेंट कैसे है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. सो यू विल गेट मूवमेंट हेयर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन लाइक दिस, इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ, इफ यू सोल्व दिस 1.5 into 300 into sin 30 value is 1/2, so this will give us 225 Newton. This is 150,
and 0.575, and this will give us 225 Newton. So here we have 225 Newton around this axis, and we have also a 300 cos 30 degree is we have given this 300 cos 30 degree is also axial force. So here we have also this axial force in this direction, that is 300 cos 30 equal and opposite reactions. This also we have this reaction equals to 300 sin 30. If you take moment here above this point, you will find out this 225, because 300 cos 30 into this lever arm, which is equals to 3.5 meter. If you multiply this, you will get in this direction, that is moment equals to 300 cos 30 into 3.5. तो आपको ये मोमेंट की वैल्यू इस तरफ मिलेगी ड्यू टू दिस लोड. We already have 225 Newton load in the same direction. Then we will add these two, and movement obtained in opposite direction. So here we have movement in this direction. This is opposite to what is the acting over here. So this is our answer. This will comes out to be 1135 Newton. 1135 Newton meter, because this is a movement. So this is our first question. ये बहुत इजी क्वेश्चन था आपका, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है. लेकिन जब कन्वेंशनल में पूछेंगे तो आपको स्टैंड पोस्ट में ऐसे पूरा इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी होगी, तो उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई यहाँ पर मूवमेंट की वैल्यू बताइए, या फिर यहाँ पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू बताइए, टॉर्शन क्या होगा. तो वो कन्वेंशनल में पूछा जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में इतना सब पूछ लिया जाता है. तो मैंने आपको एक ब्रीफिंग दे दिया है कि कन्वेंशनल में क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं. तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का. अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन की. सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं. सेकंड क्वेश्चन आपका गेट का है. गेट आई थिंक 2014 का. ये आपको एक फिक्स पोर्ट दे रखी है. लेट्स से ये फिक्स पोर्ट आपके पास, और आपको गिवन है, आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर गिवन है. जिस ये पॉइंट आपका S, ये है R, ये है R, ये है Q, और here we have acting load W. say this point is P. ये आपका गेट का एज इट इज क्वेश्चन है. दिस लेंथ इज L, दिस इज ऑल्सो L, बट दिस लेंथ इज 2L. नाउ यू हैव टू टेल द फॉल्स स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करनी है. क्वेश्चन जब आप करो तो स्टेटमेंट बिल्कुल ध्यान से पढ़ा करो, बिकॉज इसमें आपको क्या पूछा गया, फॉल्स स्टेटमेंट पूछी गई है, ना कि ट्रू स्टेटमेंट. तो बहुत सारे क्वेश्चन यहीं ही गलती कर देंगे विदाउट सीइंग दैट इट इज एक्चुअली आस्किंग यू द फॉल्स स्टेटमेंट. तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है, आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गिवन है, वो गिवन है वी हैव अ टॉर्शन ऑफ मैग्नीट्यूड WL on PQ, that is this right or false statement? Second, we have given a bending moment on PQ increasing and maximum value equals to W times L. Third one is you have given in SR we have a constant torsion of, we will obtain a constant torsion of
constant torsion of W times 2L, W times 2L, or fourth statement is there is no torque in QR, in member QR member. So you have to choose the false statement here. This is very straightforward question. All you have to do is draw its BMD. आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए. आप इसका अलग अलग फोर्सेस आप दिखाइए. लाइक इफ दिस इज W load, then show here W load and movement also, and try to find out whether these statements are true or false. You have given that torsion of WL on PQ. Is there any torsion on this thing, on this structure? We will do not get any torsion. So this is our false statement, and then it also solve itself your question. You find out your false statement. So it means your second statement is true, third is true, and fourth is true. I hope you will find out that. So this was our second question. आपको यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना था. इस क्वेश्चन के अंदर फ्री बॉडी डायग्राम से आप इस क्वेश्चन को बड़े इजीली कर सकते हो. तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन. अब बात करते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की. यू हैव टू ड्रॉ स्टेट ऑफ स्ट्रेसेस. आपको स्टेट ऑफ स्ट्रेसेस ड्रॉ करने हैं. यू हैव गिवन दिस बीम ऑफ लेंथ L, simply spotted. If this is your simply spotted beam of length L, now this length is your L/2. You have to draw the state of stresses. मतलब क्या हुआ, आपको किसी पॉइंट के ऊपर स्ट्रेस की स्टेट्स बतानी है. इफ दिस इज UDL एक्टिंग ओवर इट हैविंग मैग्नीट्यूड W, तो आपको एट पॉइंट A, एट पॉइंट B, एंड एट पॉइंट C, एंड एट पॉइंट D, और से पॉइंट E, आपको स्टेट ऑफ स्ट्रेसेस ड्रॉ करनी है. मतलब आपको इसके ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस की वैल्यूज को शो करना है ओवर दी स्मॉल ब्लॉक. तो कैसे करेंगे, ट्राई कीजिए अपने आप से. तो मैं बताता हूँ अब आपको. इफ दिस इज ए ब्लॉक, if this is our A block, then we can see that at top of here bending moment, we know that bending moment diagram is something like this. If we see bending moment diagram is something like this. So we have only bending here but not the shear stress, because shear stress at this point is 0. Shear stress at this point is 0. So you have only bending, and as this member is in compression zone, so this will be in compression side. So this is in compression side. So this is its state of stress. If this is sigma, then this will be your state of stress for point A. If you see B point, now you can see at B point you have only shear stress and you do not have any bending stress. So shear stress, so here we have only shear stress and do not have any bending stress. So we will get our diagram something like this, or in reverse you can say this will be something like this. This will be something like this. For this is our B. This is our case for B. At C point also it's easy now. This will be our tensile stresses, sigma tensile. Here we have C point. For D point we have both stresses. Here we have shear value. If you draw its shear diagram, you will find out that value of B is equals to 0 at point D, and moment value at center is 0. So at D you will do not have any stress. At point D you do not have any stress value. At point E
if I show you at point E, you will have both shear stress and normal stress, and that is in compressive zone. So here you have compressive stresses like this, and this is your state of stress at point E. तो आपका पॉइंट E के ऊपर स्टेट ऑफ स्ट्रेस ये था. तो दिस वाज आवर थर्ड क्वेश्चन. इस क्वेश्चन करने का पर्पज ये है, जब हम कंबाइंड स्ट्रेसेस के क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो वी विल सी दैट वी हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम ओनली वी एबल टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और स्ट्रेसेस ऑन एनी इंक्लाइंड प्लेन. द मेन पर्पज ऑफ डूइंग दिस इज टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस. So with the help of this state of stresses we can easily do so. So this was our third question. Moving to our fourth question. Now moving to our fourth question. In our fourth question we will talk about combined bending and torsion. We will talk about combined bending and torsion. Question from combined bending and torsion. कंबाइंड बेंडिंग एंड टोर्शन. तो बेसिकली आपके पास यदि मूवमेंट भी एक्ट कर रहा है और टॉर्क भी एक्ट कर रहा है, टॉर्शनल मूवमेंट एमटी बोल लीजिए, तो उस केस में चीज़ें कैसे वेरी करती हैं और कैसे हम स्ट्रेसेस कैलकुलेट करते हैं. कंसिडर करते हैं इफ़ यू हैव दिस शाफ्ट, कंसिडर करते हैं ये शाफ्ट है, ये आपका फिक्स स्टैंड है, दिस इज योर फिक्स स्टैंड. तो यदि इसके ऊपर टॉर्क एक्ट कर रहा है, से एम टी सबस्क्रिप्ट हेयर फॉर टॉर्क, एंड इफ दिस इज अ मूवमेंट एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन, से एम एक्स और एम बी एक्स, मूवमेंट ड्यू टू बेंडिंग इन ऑन एक्स डायरेक्शन. इफ दिस इज अवर एक्स डायरेक्शन, दिस इज अवर वाई डायरेक्शन एंड दिस इज अवर जेड डायरेक्शन, तो आपका एम बी एक्स एक्ट कर रहा है. तो इस सिनेरियो में आपको जो ब्लॉक है कोई भी, उस ब्लॉक के ऊपर आप स्ट्रेसेस कैसे कैलकुलेट करोगे, आप स्ट्रेसेस कैसे कैलकुलेट करोगे वो हमें यहाँ पर देखना है. तो बेसिकली यदि आपका एज्यूम करते हैं ये कोई ब्लॉक है, से ए, तो आपको पता है ये ड्यू टू मूवमेंट बेंडिंग स्ट्रेस देगा और ड्यू टू टॉर्क ये शियर स्ट्रेस देगा. तो इसको यदि शो करेंगे तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेस देगा और टॉर्क के कारण शियर स्ट्रेस आपको प्रोवाइड करेगा, शियर स्ट्रेस आपको प्रोवाइड करेगा. तो क्वेश्चन क्या बनता है, कमिंग टू अवर क्वेश्चन, यू हैव बीन आस्क्ड द वैल्यू ऑफ टाउ मैक्स एंड सिग्मा मैक्स. यू हैव आस्क्ड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस. You have been asked about the maximum shear stress to the maximum normal stress. You have given value mt and mbx और से mb. तो आपको मैक्सिमम shear stress निकालना है. तो कैसे निकालोगे, हमें पता है टाउ मैक्स कैसे निकलता है. Here we can see at particular point, यदि आप किसी एक पॉइंट के ऊपर बात करते हो, यदि आप टॉर्शन ही लगेगा यदि किसी एक पॉइंट के ऊपर, से here on neutral axis at this point we have sigma value equals to 0 because of y equals to 0. y equals to 0, सिग्मा होता है हमारा m by i into y. तो आपका क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस से कोई डिस्टेंस नहीं है इस पॉइंट के ऊपर, तो आपको सिग्मा की वैल्यू 0 मिलेगी, लेकिन वहाँ पर आपको टाउ मिलेगा. टाउ की वैल्यू क्या होगी, टी आर वाई जे. जे होता है आपका पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसकी वैल्यू होती है पाई बाय 32 डी की पावर 4 for circular section. R equals to d by 2. This will gives us 16t by pi d cube. 16t by pi d cube. तो ये आपका मैक्सिमम shear stress होगा. This is your maximum shear stress. Similarly, at this point, at the top of surface, you will do not find out any shear stresses due to torsion. टॉर्शन के कारण जो shear stress आपको देखने को मिलता है सर्कुलर सेक्शन में, वो कुछ यदि ये सेंटर है तो ऐसे मिलता है, वो ऐसे मिलता है आपको. तो यदि आपका सरफेस के ऊपर जाएगा सिस्टम, तो आपको यहाँ पर या फिर यहाँ पर ऑन दी सरफेस आपको शियर स्ट्रेस नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर आपका टॉर्शनल स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होता. उस केस में आपको ओनली
नॉर्मल स्ट्रेस मिलेगा, और नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, m बाई आई इंटू वाई. सो दिस विल बी इक्वल्स टू m बाई पाई बाई 64 d4 इंटू d बाई 2. दिस विल गिव्स अस 32 m बाई पाई d क्यूब, 32 m by pi d cube. So the ratio of tau max and sigma max will be equals to, this is now straightforward, t by 2 times of m, because if you divide this part 1 and 2 you will get t by 2 times of m, or you can say mt by 2 times of m into m subscript b. तो ये आपका क्वेश्चन जो इससे यूजुअली पूछा जाता है, ये अराउंड 3 to 4 टाइम पूछा गया है प्रीवियस ईयर में. अब इसी से ही आपको क्वेश्चन जो दूसरा जो इसी से क्वेश्चन बनता है वो बनता है फाइंड द प्रिंसिपल स्ट्रेस. आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड प्रिंसिपल स्ट्रेस, इसी से ही फाइंड प्रिंसिपल स्ट्रेस आपको बताना है. तो उसके लिए आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सिग्मा 1 2 का. यू कैन राइट 16 बाय पाई डी क्यूब m प्लस माइनस रूट m स्क्वेयर प्लस t स्क्वेयर. तो ये भी आपसे डायरेक्ट पूछा गया है. प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, आपको डायरेक्ट पूछा जाता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस. सिमिलरली आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट टॉर्क और इक्विवेलेंट मूवमेंट, m इक्विवेलेंट. तो वो कैसे निकालते हैं, तो m इक्विवेलेंट से क्या मतलब है, ये सारी वैल्यू आपको ऐसी वैल्यू ऑफ दैट वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस विच विल गिव दैट मच अमाउंट ऑफ स्ट्रेसेस इफ ओनली मूवमेंट इज एक्टिंग, दैट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट मूवमेंट. Similarly, equivalent torsion is that value of torsion in which give effective shear stress value equals to that torsion which produced by principal stress. So with this definition we can say m equivalent will gives you m plus root times of m square plus t square, and t equivalent सिमिलरली इक्वल्स टू m स्क्वेयर प्लस t स्क्वेयर. तो ये दो क्वेश्चन भी आपको रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो इससे पूछे जाते हैं. सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए. ये आपको 1/2 मिलेगा, ये आपको 1/2 टाइम्स ऑफ m प्लस रूट m स्क्वेयर प्लस t स्क्वेयर, बिकॉज यहाँ पर क्या आएगा 32 m इक्विवेलेंट बाय पाई डी क्यूब. तो 32 है, तो जब हम सोल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास 16 था, यहाँ पर 16 था, तो 16 बाई पाई डी क्यूब को जब आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा m इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ m प्लस रूट m स्क्वेयर प्लस t स्क्वेयर. सो दिस वाज अवर फोर्थ क्वेश्चन जो आपसे यूजुअली पूछा जाता है फ्रॉम कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन से ये आपको क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपको. अब हम बात करते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की, जो यूजुअली आपसे कंबाइंड एक्सियल लोड एंड टॉर्शन से पूछते हैं. कंबाइंड एक्सियल लोड एंड टॉर्शन, इसका क्वेश्चन देखिए, क्लियर होगा वहां से. कंबाइंड एक्सियल लोड एंड टॉर्शन से आपको गिवन है एक शाफ्ट, अगेन आपको एक शाफ्ट गिवन है जिसका डायमीटर आपको गिवन है इक्वल्स टू 100 mm डायमीटर आपको गिवन है. दिस इज द डायमीटर ऑफ शाफ्ट एंड यू हैव गिवन compressive load acting over this here a compressive load acting P compressive because it is in this direction equals to 100 pi kilonewton and a torque is acting of value 5 pi kilonewton meter. Torque is acting at the free end. Now you have to tell the maximum shear stress.
shear stress ट्राई की जाए। मैं आप ऑप्शन देता हूँ आपको 20√3, 20√15, 20√17 और 20√10। तो ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। आई थिंक ये बन जाएगा आपसे, और अभी तक तो बन जाना भी चाहिए था। ये मुश्किल से 1 मिनट का क्वेश्चन है, तो देखिए कैसे करना है। ये हमें गिवन है कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड टॉर्शन इज गिवन टू अस, वैल्यू इक्वल्स टू 5 पाई किलो न्यूटन मीटर, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। नाउ यू नो दैट टाउ मैक्स इज गिवन एज सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वेयर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वेयर, टाउ एक्स वाई स्क्वेयर। तो आप कोई भी स्ट्रेस ब्लॉक लीजिए यहाँ पर। इफ यू सी दिस स्ट्रेस ब्लॉक, you have a compressive stress of 100 pi, and if you see the value of shear stress here, you have given a torque equals to 5 pi। तो आप shear stress की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 16t बाई पाई डी क्यूब, TR/J से। आपको t की वैल्यू पता है, that is 5 pi divided by pi, and you have given a diameter of 100 mm, and this is in kilonewton meter. Make it in Newton mm. This is in Newton mm, so you get your final value in MPa, that is Newton per millimeter square। हाँ, जब इसे सोल्व करोगे this will cancel out and this will cancel out, this will give us 80। सिमिलरली आपको सिग्मा की वैल्यू यदि यहाँ से सोल्व करोगे, this will give us 100 pi divided by pi by 4 into 100 का square। This is in kilonewton, so now this is in Newton। If you solve this 101 cancel out each other, pi cancel out with each other, this will gives us, if this 100 cancel out with this is this, and here left with 10, and this is 40, this is 40 MPa, this is 40 MPa। Your value will obtain as 40 MPa। Now if you solve here, you will put all this value here, you get tau max equals to 40 by 2, because you do not have any stresses on y plane, 40 by 2 whole square plus tau xy square, which is equals to 80 square, 80 square। This will gives us 20 का square, that is 400, and 80 square 6400, which is equals to 6800। Now see the options. 20 is common in all of them, so if we take out 20 from here, then we have to divide it from 400। If we cancel out this, we will get 20√17, so our answer will be 20 times of √17। Our answer is here C। So this is question from axial load and torsion। So do try this question, it is a good question, and it is also asked in the previous year around 2 to 3 times, so you must solve this question। So this was our fifth question, Now coming to our sixth question, we do not see question from the axial loads and bending। हम बेंडिंग से और एक्सियल लोड जो एक कंबाइंड स्ट्रेसेस बनेगा, मतलब क्या, जैसे कोई आपके पास कॉलम है, यदि ये कोई कॉलम है आपके पास, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं इसके ऊपर एक्सियल लोड भी होगा और साथ में आपको बेंडिंग भी देखने को मिलेगी। तो वो पार्ट हम जो कॉलम्स का चैप्टर होगा आरसीसी के अंदर, उसमें कवर करेंगे। बिकॉज यहाँ पर आपको एक्सियल लोड यदि आप निकालना चाहोगे, वैसे P/A आपका एक्सियल लोड, और मूवमेंट जो आएगा PE डिवाइड बाई I इंटू वाई, M/I/Y होता है ना हमारा, तो PE डिवाइड बाई I इंटू वाई, वहाँ से आपको कंबाइंड एक्सियल लोड और स्ट्रेसेस के क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन इस चैप्टर में हमारे कंबाइंड स्ट्रेसेस में इसके क्वेश्चन आपको यूजुअली देखने को नहीं मिलेंगे, ये आरसीसी में मिलेंगे आपको।
आरसीसी में, रेनफोर्समेंट कंक्रीट में, उसमें आपको इसके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो इसको हम वहीं डिस्कस करेंगे, वी विल नॉट डिस्कस इट हियर। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज रिलेटेड टू थ्योरीज ऑफ फेलियर। थ्योरीज ऑफ फेलियर, थ्योरीज ऑफ फेलियर, आपको पता होगा वी हैव मेनली 5 फेलियर थ्योरीज दैट इज गिवन टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम्स। सिंप्लीफाई कैसे, आपको पता है मल्टी एक्सियल लोडिंग में यू कैन नॉट से अबाउट द क्रैक्स प्रोड्यूस्ड इन विच डायरेक्शन। आप क्रैक्स की डायरेक्शन को डिटरमाइन नहीं कर सकते इन केस ऑफ मल्टी एक्सियल लोडिंग। यदि यूनी एक्सियल लोडिंग है आप इजीली बता सकते हो क्रैक्स इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि शेयर है तो शेयर से कारण क्रैक्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं हमें पता है। नॉर्मल स्ट्रेस है तो क्रैक्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं हमें पता है। जैसे यदि मैं आपको दिखाऊं कैसे पता है, इफ दिस इज अवर सिंपली सपोर्टेड बीम, दिस इज अवर सिंपली सपोर्टेड बीम, नाउ इफ UDL is acting over it having magnitude W and this is length L. Now at center we know here we have main force of shear, here we have mainly bending. At center we know bending stress is maximum, that is equals to WL square by 8. WL square by 8. Here we have shear prominent. At sports we know shear is maximum here. If you see cracks here, you know that shear will produce maximum at the center. तो आपको क्रैक्स कुछ ऐसी देखने को मिलेगी इधर, जैसे ही आप सेंटर की तरफ मूव करना शुरू करोगे आपको क्रैक्स की डायरेक्शन चेंज होनी शुरू मिलेगी और सेंटर पे आते आते आपको ये नॉर्मल होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपका बेंडिंग स्ट्रेस प्रोमिनेंट है सेंटर के ऊपर, तो उस केस में आपको नॉर्मल स्ट्रेस मिलेगी। और जैसे आप सपोर्ट की तरफ मूव करोगे आपको इंक्लाइंड स्ट्रेस मिलेगी, वो भी सेंटर की तरफ, और ये आपको मिल रही है एट द बॉटम एज, बिकॉज जो आपका देखोगे ये पार्ट जो होगा इसमें क्रैक्स देखने को मिलेगी, क्योंकि मूवमेंट आपका यहाँ पर मैक्सिमम होगा और ये पार्ट कंप्रेशन में है और कंक्रीट वीक होता है कंप्रेशन में, कंक्रीट वीक होता है कंप्रेशन में, तो क्रैक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी किसी भी बीम में। तो उसकी बात नहीं करते, अब हम थ्योरीज ऑफ फेलियर का हमने पर्पस देख लिया। इट इज बिकॉज ऑफ मल्टी एक्सियल लोडिंग वी रिक्वायर थ्योरी ऑफ फेलियर। इससे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन इसमें पूछा गया है व्हेन विल द थ्योरी ऑफ फेलियर गिव्स द सेम रिजल्ट वट एवर वी, लेट मी राइट इट डाउन सो दैट यू कैन राइट ऑल्सो। इन what condition theories of failure, in what condition all theories of failure gives same result, all theories of failure gives same result, gives same result। आपके ऑप्शंस हैं, ट्राई कीजिए इसको। आपके ऑप्शंस हैं when principal stress is maximum in one direction as compared to other, maximum in one direction as compared to other, or when we have the same principal stresses, when we have same principal stresses, or third option is in every stress condition, your third option is in every stress condition and none of the above। तो कोशिश कीजिए, वैसे तो मैंने आपको आंसर इसका पहले ही बता दिया है। हम थ्योरीज ऑफ फेलियर यूज इसलिए करते हैं ताकि हम मल्टी एक्सियल लोडिंग को कंसिडर कर सकें। यदि थ्योरीज ऑफ फेलियर हमें यूज़ ही नहीं करनी है या फिर इक्वल रिजल्ट हमको ऑब्टेन करने हैं,
then it means that principal stresses will be very very high in one direction as compared to other. उसका मतलब क्या होगा, आप एक डायरेक्शन को, if this is your principal stress sigma 1, then this is sigma 2 value which is equals to 0 almost, then this is only uniaxial loading. This will give us uniaxial loading, and for uniaxial loading only we will have same value of we have same results for all the stress condition. हमें same result मिलते हैं for uniaxial loading from different theories. अब जो थ्योरीज है हमारे पास 5 थ्योरीज है, जैसे हमारे पास है प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, स्ट्रेन थ्योरी, शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी एंड डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, और इनके अदर्स नेम भी हैं, आपको वो नेम भी याद होने चाहिए. हम 1 by 1 क्वेश्चंस देखेंगे जो बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं हमारे प्रीवियस ईयर में. तो शुरू करते हैं हमारा 6th क्वेश्चन. ये तो मैंने आपको इसका बेसिक्स बताया है, थ्योरीज ऑफ फेलियर, व्हाई वी यूज थ्योरीज ऑफ फेलियर, एंड दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम दैट ओनली. सो शुरू करते हैं 6th क्वेश्चन हमारा, जो एक्चुअल क्वेश्चन है. हमारा जो 6th क्वेश्चन है वो है आपका मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी से, मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी से, मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी से. इसी को बोलते हैं सेंट वेनेंट थ्योरी. सेंट वेनेंट थ्योरी काफ़ी फेमस साइंटिस्ट थे अपने टाइम के, सेंट वेनेंट. इन्होंने काफ़ी डिस्कवरीज भी की हैं, जैसे कि कोई जो ब्रिज देखते हो आप, तो उसके अंदर जो आप प्लेट लगाते हो, जो पैड लगाते हो, उसको बताया उन्होंने कि जो स्ट्रेस होगा उसके अंदर एट ए डिस्टेंस ऑफ विड्थ ऑफ दैट पैड विल बी आफ्टर दैट डिस्टेंस ओनली द पैड विल गिव अ यूनिफॉर्म स्ट्रेस. मतलब कि जैसे कि मैं यदि बताऊं, यदि मान लिया ये कोई पैड है, ये पैड है जो ब्रिज के आपको देखने को मिलता है, ये हमारा ब्रिज है जैसे, तो ये पैड है और ये हमारा पिलर है, जो हमारा कॉलम है बेसिकली, ये हमारा कॉलम है. तो ये पैड की जो यदि हमारी थिकनेस t है, यदि हमारी पैड की थिकनेस t है और विड्थ b है, इफ दिस विड्थ इज b, तो आपको जो स्ट्रेसेस मिलेंगे एट दिस पॉइंट ऐसे कुछ मिलेंगे, लेकिन एट अ सर्टेन डिस्टेंस वी विल गेट यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस. आपको यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस मिलने शुरू हो जाएंगे. तो उससे रिलेटेड जो डिस्कवरी है वो इन्होंने ही की है. ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, तो अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है ये क्या है क्या नहीं है. तो हम बात करते हैं स्ट्रेन एनर्जी से थ्योरी से क्वेश्चन. इससे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें आपको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस गिवन है. सिग्मा 1 लाइक से दिस इज 1.5 सिग्मा पॉजिटिव, दैट इज टेंसाइल इन नेचर. सिग्मा 2 वैल्यू इज गिवन टू यू, that is sigma which is also positive, and sigma 3 value given to you, that is 0.5 sigma which is negative. Negative means it is compressive in nature. So you have also given a elastic limit of 210 MPa and Poisson's ratio value equals to 0.3. You have to find the value of factor of safety. आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है. ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है. आपको यहाँ पर देखना है कि सिग्मा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेन थ्योरी. हमें पता है स्ट्रेन थ्योरी में जो आपका एप्सिलॉन मेजर होता है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा मेजर डिवाइड बाई ई माइनस म्यू सिग्मा माइनर डिवाइड बाई ई. दिस वैल्यू शुड बी लेस देन एफ वाई टाइम्स ऑफ एफ वाई डिवाइड बाई ई इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी. तो आप ई कैंसिल आउट कर दीजिए यहाँ से डायरेक्टली. आपको डायरेक्टली काम कीजिए सिग्मा मेजर माइनस म्यू सिग्मा माइनर लेस देन एफ वाई डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी. तो आप इसके ऊपर काम कीजिए. जब आप इसको यूज़ करोगे, सोल्व करोगे, तो आपको डायरेक्टली सिग्मा की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी. यहाँ से कैसे? आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पर पूछा नहीं गया. फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको गिवन है यहाँ पे, क्योंकि आपको सिग्मा नहीं पता है. यू हैव गिवन अ फैक्टर सेफ्टी 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा. आपको सिग्मा की वैल्यू बतानी है, ना कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी की. क्वेश्चंस यूजुअली क्या होते हैं,
दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, आपसे या तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछ लेते हैं या फिर सिग्मा की वैल्यू पूछ सकते हैं। तो ये ही दो तरह के क्वेश्चन पॉसिबल है इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में, इस कंसेप्ट में। तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछा जाए तो आपको मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी रिपोर्ट करना होता है। मतलब कि यदि आपकी ये टर्म मैक्सिमम हो जाए तभी आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या मिलेगा, मिनिमम। यदि आप इसको मिनिमम ले लोगे तो आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैक्सिमम मिलेगा। तो जो कि आपको नहीं करना है, आपको मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी रिपोर्ट करना होता है। तो ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए समटाइम्स आपको ये दिया रहेगा, फाइंड द मैक्सिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी फ्रॉम मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी। तो आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम भी बोलेंगे तो भी आपको मिनिमम रिपोर्ट करना है। क्योंकि यदि आप देखोगे इसको एनालिटिकली, यदि आप मिनिमम रिपोर्ट करोगे तभी आप सेफ आओगे, वरना आपका जो है स्ट्रेस एक्सीड कर जाएगा फ्रॉम इट्स यील्डिंग पॉइंट, दैट इज Fy। तो यदि इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये पार्ट मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम कब मिलेगा, हम इसको एज इट इज रखें 1.5 सिग्मा माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा माइनर क्या हमारे पास, दिस एंड दिस। सो वी हैव सिग्मा पॉजिटिव हेयर एंड दिस इज 0.5 सिग्मा, 0.5 सिग्मा। दिस वैल्यू शुड बी लेस देन 210। बस इसको सोल्व कर लीजिए। जब आप इसको सोल्व करोगे, ये आपको वैल्यू गिवन है 0.3, दिस विल कम्स आउट टू बी 0.5 सिग्मा एंड सब्ट्रैक्ट करोगे 0.15 सिग्मा, तो ये मिल जाएगा आपको 1.35 सिग्मा, दैट शुड बी लेस देन 210 एंड सिग्मा शुड बी लेस देन 210 डिवाइड बाई 1.35। तो जब सोल्व करोगे इसको आपको आंसर मिल जाएगा, ये आएगा आपका अराउंड 155 के करीब, 155.5 MPa। तो ये आपका इससे आंसर मिलेगा। तो इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम कंबाइंड स्ट्रेसेस, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया है, अराउंड 10 टाइम्स पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछा गया कभी कभी, और कभी आपसे सिग्मा की वैल्यू पूछी गई है। तो यू मस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। आपको कभी कभी स्ट्रेन थ्योरी ना बोल के वो आपको सेंट वेनेंट थ्योरी भी बोल सकता है, सेंट वेनेंट थ्योरी भी आपको बोल सकता है, जिससे आपको सिग्मा या फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू निकालना पूछे हो। तो ये था हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, ये था हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। शियर स्ट्रेस थ्योरी से भी आपको बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, इसको बोलते हैं ट्रेस्का थ्योरी। शियर स्ट्रेस थ्योरी इसी को बोलते हैं ट्रेस्का थ्योरी, क्योंकि ये ट्रेस्का ने दी थी। सो दैट्स कॉल्ड ट्रेस्का थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। इसमें आपको पता है इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है शियर स्ट्रेस की, यू हैव टू टेक अ मैक्सिमम ऑफ दीज वैल्यू, मैक्सिमम ऑफ दीज वैल्यू should be less than Fy divided by 2 times of factor of safety। तो ये आपको इसकी स्टेटमेंट पता है, इसी से ही क्वेश्चन बनते हैं। आपको सिग्मा 1 की वैल्यू गिवन रहेगी, 2 की एंड 3 की। तो आपसे या तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछ लिया जाएगा या फिर सिग्मा ही पूछ लिया जाएगा, जो एक कॉमन फैक्टर में रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन देखते हैं इसका। हमें गिवन है Fy इक्वल्स टू 300 MPa, यील्डिंग स्ट्रेस गिवन है हमें, सिग्मा 1 गिवन है हमें, सिग्मा 1 गिवन है डेट इज इक्वल्स टू 120 MPa, सिग्मा 2 इज गिवन टू 60 MPa एंड सिग्मा 3 इज गिवन टू 30 MPa which is in compressive, which is compressive negative। यू हैव टू टेल द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। आपको बताना क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपके पास सामने सब कुछ गिवन है, यू कैन इजीली कैलकुलेट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ट्राई कीजिए, देखते हैं क्या आंसर आएगा।
ट्राई कीजिए आप लोग। तो यदि आप जब इसको सोल्व करोगे, क्योंकि ये जो टर्म है हमें मैक्सिमम वैल्यू देगी। कैसे? 120 माइनस 30 डिवाइड बाई 2 दैट शुड बी लेस देन fy/2 टाइम्स ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। आप चेक करोगे तो ये सबसे ज़्यादा वैल्यू देगी। इसको सोल्व करोगे तो आप 75 डिवाइड बाई fy/2 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। fy इज गिवन टू यू 300, दिस विल प्रोवाइड अस फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी विल बी इक्वल्स टू 2 और लेस देन 2। आपको रिपोर्ट करना होगा तो आपको बताना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू आपकी 2 है, इधर आप 2 गुना लोड उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो ये था हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से क्वेश्चन। इसी से क्वेश्चन एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है। इन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी यील्डिंग बिगेन्स व्हेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू। यील्डिंग जब शुरू हो जाती है जब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाए, fy/2। आपके ऑप्शंस क्या हैं? आपका फर्स्ट ऑप्शन है fy/2, सेकंड है fy/√3, थर्ड ऑप्शन fy/2√2 और डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सिंपल है, हम देख रहे हैं यील्डिंग शुरू हो जाती है जब शियर स्ट्रेस की वैल्यू fy/2 पहुंच जाए, तो आप आंसर क्या होगा fy/2। ये भी क्वेश्चन आपसे 2-3 बार पूछा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसी से रिलेटेड जो इसका यील्ड लोकस होता है, एक यील्ड लोकस होता है किसी भी थ्योरी का। जैसे हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी है, उसका यील्ड लोकस रेक्टेंगुलर शेप का है, ऐसे ही शियर स्ट्रेस थ्योरी का यील्ड लोकस हेक्सागोनल शेप का है। कैसे शेप का है? हेक्सागोनल शेप का। तो ये भी आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। कैसे दिखाएंगे यदि हमें दिखाना हो? इफ यू हैव टू शो दिस इज समथिंग लाइक दिस, हेक्सागोनल शेप का आपका यील्ड लोकस होता है शियर स्ट्रेस थ्योरी का। तो ये भी आपसे IES में क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्टली, व्हाट इज द यील्ड लोकस ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी और ट्रेस्का थ्योरी। तो आपको पता होना चाहिए इट इज ऑफ हेक्सागोनल शेप। तो ये था हमारा आज का 7th क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज अवर 8th क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। दिस इज अवर 8th क्वेश्चन, टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। इसी को बोलते हैं टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, इसी को बोलते हैं बेल्ट्रामी-हे थ्योरी। इसकी हमें पता है स्टेटमेंट क्या है। इसमें हमें गिवन है 1/2e टाइम्स ऑफ σ1 स्क्वायर प्लस σ2 स्क्वायर प्लस σ3 स्क्वायर माइनस 2 म्यू σ1 टाइम्स ऑफ σ2 प्लस σ2 टाइम्स ऑफ σ3 प्लस σ3 टाइम्स ऑफ σ1 शुड बी लेस देन fy बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2e। तो आपको ये इसका फॉर्मूला पता है। ये आप कैसे निकालते हो? आप डायरेक्टली एनर्जी से ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। तो क्योंकि ये टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी का कंसेप्ट है। आपको गिवन क्या रहेगा एग्जाम में? σ1 σ2 σ3, या फिर आपको fy भी गिवन रहेगा। आपको पूछा जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए पूछ सकते हैं, या फिर आपको σ2 और σ3 गिवन रहेगा। कोई 2 वैल्यू गिवन रहेगी, थर्ड पूछ ली जाएगी। कोई थर्ड गिवन रहेगी तो आपको ऐसे कुछ वैल्यू गिवन रहती है, आपको फॉर्मूले से 4th वैल्यू निकालनी होती है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। आपको गिवन है σ1 इक्वल्स टू 60 MPa, σ2 इक्वल्स टू 48 MPa एंड σ3 इक्वल्स टू -36 MPa। ये वैल्यूज़ आपको गिवन है, और म्यू की भी वैल्यू गिवन है आपको 0.3
और ई आपको पता ही है 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ई की यूजुअली वैल्यू 200 या 210 मिलेगी आपको, क्योंकि स्टील की जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो 200 के करीब होती है। आपको बताना है फाइंड स्ट्रेन एनर्जी। इसमें डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन में स्ट्रेन एनर्जी पूछा है, फाइंड स्ट्रेन एनर्जी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको इसको सोल्व करना है, बस सोल्व करके आपको वैल्यू रिपोर्ट करनी है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे आपको मिलेगा, इसकी वैल्यू आंसर बता देता हूँ मैं आपको। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 19.5 किलो न्यूटन मीटर पर मीटर क्यूब। यूनिट देखिए ध्यान से, 19.5 किलो न्यूटन मीटर पर मीटर क्यूब। तो ये आपको इसका आंसर मिलेगा, ट्राई कीजिए। तो ये था हमारे पास आज का 8th क्वेश्चन। दिस इज अवर 8th क्वेश्चन फ्रॉम दी टोटल स्ट्रेन एनर्जी। नाउ वी विल सी आवर लास्ट 9th क्वेश्चन विच इज फ्रॉम दी मैक्सिमम डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी, और 9th क्वेश्चन इज फ्रॉम डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी। डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी, इसी को कभी कभी बोल देते हैं, वैसे ऐसा देखा गया है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेन, मैक्सिमम शियर भी, इसमें शियर भी यूज किया है और स्ट्रेन भी यूज किया है। शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, और इसी को बोलते हैं बोन मिसिस एंड ह्यूबर हैंकी थ्योरी। ह्यूबर हैंकी थ्योरी, दोनों साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स थे दोनों, ह्यूबर हैंकी थ्योरी। और इसकी हमें स्टेटमेंट भी पता है, विच इज इक्वल्स टू 1/12g, दिस विल बी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 होल स्क्वायर। दिस शुड बी लेस देन Fy by फैक्टर ऑफ सेफ्टी होल स्क्वायर डिवाइड बाई 6g। तो ये आपकी इसकी स्टेटमेंट है। इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, यू हैव गिवन क्वेश्चन हेयर सिग्मा 1 वैल्यू इज गिवन टू 2p, मतलब आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू गिवन है विच इज इक्वल्स टू 2p। p फोर्स नहीं है, यहाँ पे स्ट्रेस है। सिग्मा 1 की वैल्यू गिवन है 2p और सिग्मा 2 की वैल्यू गिवन है p। सिग्मा 2 की वैल्यू गिवन हमें p। यू हैव टू फाइंड, आपको बताना क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p, बिफोर रीचिंग yield stress using maximum distortion energy theory. Using this theory आपको बताना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p की। तो आप जब इसमें पुट करोगे, यहाँ पर यदि आप 2p यूज़ करोगे और यहाँ पे p और सिग्मा 3 की वैल्यू आप क्या मानोगे 0, तो आपको मिलेगा यहाँ से p स्क्वेयर प्लस 2p होल स्क्वेयर प्लस p स्क्वेयर। दिस वैल्यू शुड बी लेस देन, यदि आप इसको और इसको कैंसिल करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 2, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन नहीं है तो हम एज्यूम करेंगे 1। तो दिस वैल्यू शुड बी लेस देन 2 टाइम्स ऑफ Fy स्क्वेयर। इसको सोल्व करो तो आपको मिलेगा 6 टाइम्स ऑफ p स्क्वेयर should be less than 2 times of Fy square, and p is equals to Fy divided by root 3. p equals to Fy divided by root 3. तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p बिफोर रीचिंग yield स्ट्रेस यूजिंग दिस थ्योरी। तो आपका ये सिंपली ऐसे सोल्व हो जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, p शुड बी लेस देन Fy by root 3। तो ये थी हमारी लास्ट थ्योरी ऑफ फेलियर। ये था और हमारा 9th क्वेश्चन। अब 10th क्वेश्चन है, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। वो आपको बताना है इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल के लिए आप कौन सी थ्योरी यूज करेंगे। हमने अभी 4 थ्योरीज के क्वेश्चन किए हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी का क्वेश्चन नहीं किया हमने। मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी को बोलते हैं रैनकाइंस थ्योरी भी।
तो आपसे पूछा गया है फॉर ब्रिटल मटेरियल सच एज कास्ट आयरन which theory is preferred। तो इसका आंसर बताइए। फिर सिमिलरली आप बताइए माइल्ड स्टील के लिए आप कौन सी थ्योरी को प्रेफर करेंगे। और फिर बताइए फॉर फेलियर ऑफ डक्टाइल मटेरियल, आई होप ये आपको विजिबल होगा, मैं दोबारा लिख देता हूँ। फॉर फेलियर ऑफ डक्टाइल मटेरियल which theory is preferred, you can say, या फिर बेस्ट एक्सप्लेन दिस डक्टाइल फेलियर कौन बेस्ट एक्सप्लेन करता है। विच थ्योरी प्रेफर्ड। आपके ऑप्शन है तीनों के लिए मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी। तो आपको ये आंसर करने हैं तीनों क्वेश्चन। ट्राई कीजिए, इजी है। मैं बता देता हूँ आपको इसके आंसर्स क्या होंगे। हमारे पास है फॉर ब्रिटल मटेरियल विच थ्योरी इज प्रेफर्ड, ब्रिटल मटेरियल या फिर कास्ट आयरन। आपको पता है यदि कोई बेस्ट थ्योरी इसके लिए है तो वो है मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी इसके लिए प्रेफर करते हैं हम डायरेक्टली, क्योंकि स्ट्रेस में हम देखते हैं यदि आप कोई भी मटेरियल लोगे तो जो ब्रिटल मटेरियल है उसके लिए खाली यही थ्योरी एक्सप्लेन करती है, क्योंकि इसकी कंडीशन क्या है, सिग्मा शुड बी लेस देन टाइम्स ऑफ Fy डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सिग्मा मैक्स शुड बी लेस देन Fy डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो इसके लिए आपका आंसर क्या होगा, ए। फॉर माइल्ड स्टील वी नो दैट माइल्ड स्टील फेल्स इन द शेयर में फेल होता है, तो उसके लिए हमारे पास मैक्सिमम shear stress थ्योरी है। वी यूज मैक्सिमम shear stress थ्योरी। सिमिलरली अ फेलियर ऑफ डक्टाइल मटेरियल इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी से आपको बेस्ट एक्सप्लेन होता है। तो हमारे आंसर क्या होंगे, इसका ए, इसका हमारा आंसर होगा बी और इसका आंसर होगा सी। तो ये था हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर 10th क्वेश्चन। I hope you understand the lecture today and also seen that the questions asked in the previous year are very easy from this chapter only, combined stresses। आपसे कन्वेंशनल के क्वेश्चन जो होते हैं इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो यूजुअली कम पूछे जाते हैं, और पूछे जाते हैं तो वो मेनली स्ट्रेन थ्योरी से पूछे जाते हैं या फिर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से। और जनरली जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बहुत ईजी पूछे गए हैं। So you should attempt these questions and try to find out all the solution of these questions. Hope you are doing good in this pandemic time. Thank you for watching this video.